हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनालिस बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर यानी इतिहास का चैप्टर नंबर जो होगा 13 है, जिसमें हम करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था उन सभी राजाओं के अंतर्गत होगा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, या जो यूपीएससी के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussion is the most important chapter here, economics. Economics there is the most important according to here a middle period. The first point arrive here agriculture production. The agriculture production is the most important. Agriculture production is a constitute the block of production during to the middle period. The income from to the agriculture was a main source of state revenue. According to the agriculture production, there is first point here, extent of cultivation. There is the most important here, middle period, the extent of the cultivation. The extent of the cultivation may be understood is a term of the actually area under to the plugging in the relation of the total available is a cultivable land. It is to be noticed that there was a favorable ratio of the land to the man. Ability of the land is a surplus than to the actually and cultivated by their peasant, and in such a situation on a increasing of production was the sharp there through the expansion of agriculture. The bearing is a area of the under cultivation. We are the informed to the instance by the is contemporary is a source that is a large tracts of the land in even such a fertile regions at the Ganga Yamuna Dwarfs, and where is covered by the forest and the grassland during to the Sultanate period, and the land continued to the exist in a favorable ratio to be man during to the Mughal period as well. The ruler of this era, this therefore the harped on the policy of expansion of agriculture to the such as area which were heterogeneous and not under to cultivation. Agriculture was introduced to the tribals as a backward and outlining area, and forests were to the clear, and agriculture is the best land where to convert into the cultivable land. Extent of agriculture expanded in the good proposition from to the Sultanate to the Mughal period. By the Mongol period, is agriculture was a practice in almost all the part of the empire. Yet land still existed in the hugs as a surplus than to the actual requirement of the Mughal agriculture population. The extent of the cultivation significance increasing during to the reign of the Aurangzeb in a comparison to be Akbar as a reign. Then expansion of the cultivation in the Bihar and Awadh and part of the Bengal in the ascribed to be clearness of the forest, where is the Punjab and Sindh to be separate of the canal network. The next here is a crop pattern. This crop pattern is the most important and middle period. The middle India is a patient means farmer. They produce a variety of food crop and the cash crop, vegetable and spices. And they were familiar with the various advanced techniques of the crop cultivation of their time. Double cropping, 3 crops is a harvesting, crop rotation, use of the manure and the range of the device for
irrigation, etc. That is the most important here. And crop pattern is the first area of food crop. The principal food crop is produced by the rice of wheat and various millet, jowar, bajra, and a variety of the pulses as such as a gram, arhar, moong, moot, urad, and Khesaris, etc. That is the most important for the Middle India is a patient are produce. The next year a cash crop. Cash crop there is the sugarcane, cotton, indigo used to extract to the blue dye. And there is a opium, silk, etc. Where is the sum of the prominent of cash crop of Middle India of making of wine from the sugar become a bad spare by their 14th century. During the Mughal period, the sugar cane was to most widely grow to the cash crop with there is a Bengal producing the fanciest equality. There is the most important and during the Mughal period, Banaya is near to the Agra and the Sarkhes near to the Ahmedabad is a produce the best quality of indigo. Sericulture is a rearing of the silk worm and the is a mulberries is a plant which was practiced on their modest scale till the Sultanate period and become a spirit during to the Mughal period. The Bengal is emerged as the main regions of the silk production. There is the most important here. Bengal emerged as the main regions of silk of production. The Mughal provinces of Bihar, Malabar produced the finest as a quality of the opium. Tobacco cultivation was introduced in the India by the Portuguese as during to the 16th century, and it has become to the best pair in their sequentially period. And Gujarat, Bihar emerged is also is a major tobacco producing center. There is also important Surat and Bihar emerged as a major tobacco producing center. Similarly, from the 7th century, cultivation of coffee began on the large scale. There is important and the important here C point, fruit and vegetables. Fruit crop is a cultivation developed rapidly during their middle period. Some of the Delhi Sultan is actively promoted growing of the fruit crops. Firoz Shah Tughlaq from the instance is laid down to the 1200 acre chart in the University of Delhi is a Mughal is a employed and there is a nobles also is a planted to the lavish orchard. And during the course of the 16th and the 17th century, a number of fruits were to introduce in India through the outside agency. The progress, for the instance, are introduced to the pineapple, papaya, and the cashew nut, etc. The cherry was the both from to the Kabul, lychee, and the gababa were also is introduced during this is a period. A wide range of vegetables were also produced by the Middles. India is a peasant. And the Abdul Fazal is the Ane in the Akbari. Ane Akbari is the most important for the Abdul Fazal. Give a list of vegetables which were in the use at the time. And potato, chilies, and tomato were is introduced during to the later Middle period. The next year here spicy. Spicy here the peppers, cloves, cardamoms, and turmerics, saffron, betel leaves, etc. Where is some of the important spices produced by the Middle India peasant. And by the Mughal period, the southern coastal of India began exporting in a large quantity of different kind of spices to various regions in the Asia and Europe. The next here is the most important means and method of irrigation. There is the most important here. The India agriculture has always depended on the various source of water, both natures and artificially for its irrigational requirement by the rain, well, river, tank, canal, lake, etc. There is the most important here. The dam, lake, and water reserve were some of the important means of irrigation. In South India, the state, local chiefs, and the temple is a management is a constructed a number of the dam of a river from the purpose. There is an important here, and the is a Magad is a lake of the instance. The Madag lake is instance was built by there is a Vijayanagar ruler on the Tukha Bahadura rivers in the meet their irrigational need of the adjoining of territories. Lake and the water reserves such as the Devar, Sagar and the Rajamand and the Jai Mand and all the Mewar. The Valsan is a Marwar and the
Sagar is Amber is etc. The serve there as an important source of irrigation in the middle is Rajasthan. Whereas is common source of irrigations where the uniformly separate in a different part of the country. A number of artificially devices were used to be left water from well. The pulleys were to the employed over to the well from the purpose, and another device is work on the lever principle. In this method, frog of the upright beam was kept in the swing and the position with its one in tight with the long ropes, and the other is carried to the weight heavier than to the field blocked. The Bari sense is a well which began to be used in the Indian from to the Sultanate period. However, was the most advanced is a water lifting device of this period. In this method, a grey land of ports and attached to be a rim of well, a gear is a mechanism and was also attached to it. And with there is the help of the animal power, and this well was made to be rotate. The Delhi Sultan is particularly promoted to the canal irrigations, and the Ghiyaudin Tughlaq is AD 1320 to 1325 built a number of canals from the purpose. There is the most important period time of Ghiyaudin Tughlaq. That is 1320 to 1325 built a number of canals from this purpose. However, the Firoz Shah Tughlaq is led to the largest network of canal. For such a canal is frequently mentioned as a contemporary source, and this varies from the Sutlej and the Ghaggar. Sutlej and the Ghaggar is the most important river here, and opening from the is the Nandavis, and there is similar hill is the Arasin, and for the Ghaggar is the reaching up to the village of Hirasai is a Khera, and the exploitive to for the Yamuna and extended up to the Firozabad. The traditional of Delhi Sultan to be a constructed canal is continued by the Mughal Empire as well. The Nahar was in there is built during to the Shah Jahan is designed to carry water from the Yamuna and irrigate it a large area. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक कृषि संबंधी उत्पादन। अब सोचिएगा कि कृषि संबंधी उत्पादन किसके अंतर्गत है, यानी इकोनॉमिक्स जो हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था कर रहे हैं किसके अंतर्गत है, तो ये सारे जो है मध्यकालीन के अंतर्गत है। तो आपको समय पीरियड भी समझ होना जरूरी है, तो इकोनॉमी से आप समझ ही नहीं पाओगे भाई इकोनॉमिक्स है किस चीज़ का। तो ये मध्यकालीन के है जहाँ पर ज्ञानदीन तुगलक हो, चाहे कोई अकबर हो या मुगल साम्राज्य हो, तो उस समय जो था इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी थी, तो इसी पे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि कृषि संबंधी उत्पादन किस समय, मध्यकाल। तो देखा जाए तो मध्यकाल के दौरान उत्पादित कुल मात्रा में कृषि उत्पादन का हिस्सा सर्वाधिक था। यानी आपको पता ही है कि पुराने समय में कृषि का जो होता था उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, क्योंकि कृषि से सारी चीज संबंधित थी। कृषि से होने वाले आय राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। देखा जाए तो खेती बाड़ी की सीमा, देखिए सबसे पहली बात यही आता है खेती बाड़ी की सीमा। खेती बाड़ी की सीमा को इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि इस संबंध में जाना जा सके कि कुल खेती योग्य उपलब्ध भूमि में से कितने भूमि पर वास्तव में जुताई हो रही थी। यानी देखा जाए कि जो भूमि उस समय उपलब्ध था तो उसमें कितने भूमि में जो है जुताई की जाती थी। और गौर करने वाली बात यह है कि व्यक्तियों के पास पर्याप्त भूमि थी उस समय, यानी जितनी भूमि पर किसान जो है असल में जुताई कर रहे थे उसे कहीं ज़्यादा भूमि उस समय उपलब्ध था। तो ये बहुत काफ़ी दिलचस्प बात है कि जितने में जो है किसान खेती कर रहे थे उससे अधिक जो था उस समय भूमि उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में खेती के विस्तार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था, यानी नए नए क्षेत्रों को कृषि भूमि के अधीन लाया जा सकता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए समकालीन कहते हैं संसाधनों से हमें ये सूचना मिली है कि मुगल सल्तनत की अवधि के दौरान गंगा यमुना द्वाब की उपजाऊ भूमि के विशाल भू क्षेत्र वनों और घास के मैदानों से ढके हुए थे। मुगल काल में भी पर्याप्त भूमि लोगों के पास उपलब्ध थी, इसलिए इस काल अवधि के शासक इस नीति पर डटे रहे कि अब तक जिन क्षेत्रों को खेती की भूमि के अधीन नहीं लाया गया था उन क्षेत्रों तक जो है कृषि भूमि का विस्तार किया जाए।
जनजातीय पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में भी खेती बाड़ी शुरू की गई थी और वनों की कटाई की गई और कृषि योग्य व्यर्थ पड़ती भूमि को जो है खेती योग्य भूमि में परिवर्तन किया गया। सल्तनत से मुगल काल की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में कृषि की सीमा का विस्तार हुआ। तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि उस समय कृषि के जो है विस्तार के लिए मुगल कालीन के टाइम बहुत काफ़ी प्रगति की गई और जहाँ पर जो था बहुत जंगल थी उनको साफ करके जो है यहाँ पर प्रति भूमि यानी कृषि योग्य भूमि बना दिया गया। मुगल काल तक आते आते उनके साम्राज्य के लगभग संपूर्ण भाग में खेती बाड़ी होने लग गई थी। यद्यपि मुगलों के कृषि कार्य से जुड़ी आबादी किसानों की वास्तविक जरूरत से अभी भी काफ़ी ज़्यादा भूमि उपलब्ध थी। अकबर की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में कृषि उत्पादनों में अत्यधिक वृद्धि हुई। बिहार, अवध और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कृषि विस्तार का श्रेय वनों की कटाई को जाता है, जबकि पंजाब और सिंध में इसका कारण था नहरों का जाल बिछा होना। क्योंकि आपको पता है कि पंजाब जो है 5 नदियों का समूह कहा जाता है और यहाँ पर जो है नदियों का जो है जाल बिछी हुई थी, इसलिए पंजाब की भूमि जो है सदैव ही उपजाऊ ही रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है फसलों का स्वरूप। देखिए फसलों का स्वरूप कैसा था उस समय। कहते हैं मध्यकालीन भारतीय किसान कई प्रकार के खाद्य फसलें, नकदी फसलें, तुरंत बिकने वाले फसलें और सब्जियों और मसालों की फसलें उगाया करते थे। वह अपने समय की फसल उगाने के जो है प्रचलित उच्च स्तरीय जो तकनीकों से परिचित भी थे, जैसे दोहरी फसल लेना, जो है वर्ष में 3 फसलों की कटाई, फसल चक्र, खाद का उपयोग और सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की प्रणाली। तो ये फसलों की स्वरूप था जो कि वो लोग अपनाया करते थे मध्यकालीन भारतीय किसान, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके अंदर फसलों के स्वरूप के अंतर्गत बात करें हम खाद्य फसलें, तो कहते हैं खाद्य फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण था। खाद्य फसलें मुख्यतः खाद्य फसलें जिनकी उत्पादन किया जाता थी और वहाँ पर चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और अनेक प्रकार की दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, मोठ, उर्द और जो है खिसारी इत्यादि उगाया करते थे। तो ये खाद्य फसल होते थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय। मध्यकालीन भारतीय किसान के लिए ये जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नगदी फसलें। देखिए नगदी फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण थे। नगदी फसल के अंतर्गत आप सोचिएगा नगदी फसल क्या होती है। नगदी फसल का अर्थ होता है जिससे पैसे मिलते हैं, जिससे व्यापार होती है, तो वो सारे नगदी फसल के रूप में थी। इसको दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जा सकता था, वो नगदी फसल के अंतर्गत था। जैसे गन्ना, कपास, नील, ये सारे नगदी फसल हुआ करते थे। कहते हैं अगर नील की बात करें तो जो नील था रंगाई के जो है नीला रंग निकालने के लिए प्रयुक्त होता था। और आपको पता है कि पहला सत्याग्रह जो चंपारण में हुआ था वो नील की खेती के कारण ही हुआ था, जहां पर अंग्रेज ने जो है किसानों से नील लेना बंद कर दिया था। तो समझ सकते हो कि नील का क्या वहां पर महत्व रहा होगा। ठीक है, मोनोजोदारो में भी जो होता था नील की खेती करते थे किसान, तो वो मोनोजोदारो के क्षेत्र में जो जाते थे वहाँ बेचा करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। कहते हैं अगर नकदी के रूप में देखा जाए तो अफीम, रेशम इत्यादि जो है फसलें मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख नकदी फसलों में थी। गन्ने से शराब बनाना 14वीं सदी तक बहुत ही फैल चुका था और मुगल काल से जो है गन्ना सर्वाधिक उगाई जाने वाले नकदी फसलों में शामिल हो गया था। और बंगाल में सर्वोच्चतम गुणवत्ता के गन्ने की जो है फसल उगाई जाती थी, यानी यहाँ पर अच्छे किस्म के जो है फसल उगाई जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुगल काल के दौरान बयाना और आगरा के पास और खड़खेज अहमदाबाद के पास जो है सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के नील का उत्पादन होता था। सेरीकल्चर यानी शहतूत के पत्ते पर रेशम के कीड़े पालना उस समय के मुख्य उत्पादन में से था, जो सल्तनत काल में छोटे स्तर पर था, मुगल काल तक आते आते बहुत बड़े पैमानों पर फैल चुका था। यानी रेशम के कीट से जो है रेशम उत्पादन करना यानी सेरीकल्चर के अंतर्गत, तो इससे जो था काफ़ी ये फैल चुका था मुगल कालीन के समय। कहते बंगाल रेशम उत्पादन के लिए एक मुख्य क्षेत्र बनकर उभरा था और बिहार और मलवा के जो है मुगल प्रांतों में सर्वोत्तम गुणों की जो है अफीम पैदा की जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
सूरत और बिहार जो है मुख्य तमाकुल उत्पादक केंद्रों के रूप में उभरे। इसी प्रकार जो है 17वीं सदी से बहुत बड़े पैमानों पर कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा था। तो कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि रेशम के उत्पादन के लिए जो था बंगाल काफ़ी फेमस था और कहते हैं ये मुख्य क्षेत्र के रूप में था। और जैसे देखा जाए बिहार और मलबा के मुख्य प्रांतों में अच्छे गुण वाले जो है अफीम पैदा की जाती थी। और तमाकुल का उत्पादन भारत में जो 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये आपके लिए जो यूपीएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमाकुल का उत्पादन कौन किया करते थे, तो पुर्तगाली किया करते थे, ये आपको जानना चाहिए। कहते सूरत और बिहार मुख्य तमाकुल उत्पादक केंद्र के रूप में उभर के सामने आए थे और काफ़ी पैमानों पर देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा था। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट है फल और सब्जियां। देखिए फल और सब्जियां का उस समय कैसे उत्पादन होता था, उसका कौन सा जगह मुख्य था, तो ये भी जानना काफ़ी रोचक रहेगा। कहते हैं मध्यकाल में फलों और की फसलें उगाने की खेती के कामों में बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ। यानी मध्यकाल में फलों की फसलें उगाने खेती के कामों में बहुत काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ और दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने जो है फलों को उगाने के काम को बहुत अधिक सक्रिय को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास जो है फलों के 1200 बाग लगाए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों को देखा जाए तो 1200 बाग लगाना ये आम बात नहीं थी, ये बहुत अधिक बड़ी अमाउंट में लगाई गई थी। कहते हैं मुगल बादशाहों और उनके कुलीनों ने भी फलों के बहुत बड़े जो है वैभवशाली बाग बनवाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बाहरी से एजेंसियों के माध्यम से भारत का बहुत से नए फसलों के से परिचित हुए। उदाहरण के तौर पर जो है पुर्तगालियों ने अनानास, पपीता और काजू के सूखे मेवे इत्यादि को परिचित कराया। तो देखा जाए तो ये पुर्तगालियों ने बहुत कुछों को जो है भारत को दिया, जैसे अनानास हो गया, पपीता हो गया, काजू हो गया, सूखे मेवे हो गए। कहते हैं तो चेरी का जो है आयात काबुल से हुआ, यानी चेरी का जो आयात किया जाने लगा वो काबुल से हुआ। लीची और अमरूद की शुरुआत भी इसी अवधि में भारत में हो चुकी थी। मध्यकालीन भारतीय किसान अनेक प्रकार की जो है फसलें उगाते थे। फसलें और सब्जियां उगाना उनका जो है बहुत बड़ी शौक बन गया था और देखा जाए तो मध्यकालीन भारत के किसान अनेक प्रकार के सब्जियां उगाया करते थे। अबुल फजल ने जो है अपने आईने अकबरी में, यानी अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में उन फसलों और सब्जियों की सूची दी है जो उस समय जो है उपयोग में लाए जाते थे। आलू, मिर्च, टमाटर के जो है परिचय उत्तर मध्यकाल के दौरान हुआ था। यदि बात करें मसाले की, मसाले से जो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत भी जो 250 वर्ष जो है गुलाम रहा, उसका कारण जो था मसाले थे। यानी 250 वर्ष कम नहीं होता है गुलामी का। तो कहते हैं अंग्रेज भी भारत में इसलिए आए, मसाले की तलाश में आए। कहते हैं पहली बार अगर वास्को डी गामा भारत आया था तो पहले खेप में वो बहुत अधिक अमाउंट में जो है मसाले लेके गया था और काफ़ी उसको जो है उससे मुनाफा हुआ। फिर दोबारा जो है वो भारत पर रुख किया और उसके बाद रुख करता ही रहा उधर, कहते उस समय के लोग सब। तो ये मसाले जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए। कहते हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची, केसर, पान का पत्ता इत्यादि कुछ मुख्य जो है मसाले की खेती मध्यकालीन भारतीय किसान किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काली मिर्च हो, लौंग हो, इलायची हो, केसर हो, पान का पत्ता हो, ये काफ़ी जो है मध्यकालीन भारतीय किसान किया करते थे। मुगल काल के आने तक भारत के जो है दक्षिणी समुद्री तट से भारी मात्रा में विविध प्रकार के मसाले का निर्यात एशिया और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने लग गए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं मसाले जो होते हैं, आपको पता ही है स्पाइसी हर एक व्यक्ति खाना चाहता है, तो भारत जो है स्पाइसी चीज़ों के लिए ही जाना जाता है। कहते हैं अगर कृषि होती थी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी सिंचाई की, और यही बात हमारा अगला पॉइंट कहता है कि सिंचाई के साधन और उपाय। कहते हैं उस समय जितना अच्छा साधन रहा होगा वैसे ही उत्पादन किया जा सकता है। तो ये देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय कृषि अपनी सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के लिए हमेशा से ही जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के विभिन्न संसाधनों पर निर्भर रही है, जैसे वर्षा, कुआं, नदियां, तालाब, नहरें, झील इत्यादि। तो पहले समय के जो किसान हुआ करते थे इन्हीं चीज़ों पर जो है आश्रित हुआ करते थे। बांध, झीलें और जल भंडारण सिंचाई के कुछ प्रमुख साधन हुआ करते थे
और दक्षिण भारत में राज्य स्तर पर जो है स्थानीय शासकों, चीफों में और मंदिर के प्रबंधकों ने इस उद्देश्य के लिए नदियों पर जो है अनेक बांध का निर्माण भी करवाया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पुरातन समय में ये बात सच्चाई थी, जो किसान होते थे वो जो है हमेशा वर्षा, कुएं, नदी, तालाबों पर ही अपनी निगरानी रखते थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण थे सिंचाई के साधन के रूप में। लेकिन आज आधुनिक युग में जो है हर तरह के सिंचाई के साधन जो है हमारे समक्ष उपलब्ध है। उदाहरण के लिए विजयनगर के शासकों द्वारा वहां के आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जतुभद्र नदी पर जो है मंडक झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विजयनगर के शासकों द्वारा जो है आसपास क्षेत्रों में जो सिंचाई संबंधी जो है पुराने के लिए तुंगभद्र नदी पर जो मंडक झील का निर्माण कराया था। और मंडक झील का निर्माण किसने करवाया था? विजयनगर के शासकों ने। और किस नदी पे? तुंगभद्र नदी के ऊपर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। कहते हैं डोवर्स जो है उदय सागर और राजसमंद और जो जय समंद सभी मेवाड़ में जो है बालसन यानी मरवाड़ा और जो है मानसा सागर इत्यादि झीलें हैं और जल भंडारक मध्यकालीन जो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के रूप में काम में आते ही रहती हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंचाई के सामान्य साधन के रूप में कुओं का जो है जाल देश के विभिन्न भागों में एक सामान्य रूप में फैला हुआ था। कुओं से पानी बाहर निकालने के लिए कई प्रकार के जो है कृत्रिम यंत्रों या युक्तियों का प्रयोग किया जाता था और इस प्रयोजन के लिए कुओं पर जो है पुलियां, चरखियां लगाई जाती थी, जो एक अन्य यंत्र लीवर के सिद्धांत पर काम करती थी। इस तरीके में एक जो है खड़े बीम के कांटों को झूलती हुई स्थिति में वे जो है रखा भी जाता था, जिसके एक सिरे को एक रस्सी से बांधा जाता था और दूसरे सिरे पर जो है भरी हुई बाल्टी के वजन से ज़्यादा वजन बांधा रखता था। यद्यपि जो है सल्तनत शासन काल की अवधि के दौरान भारत में पर्शियन जो है व्हील यानी रहट के प्रयोग की शुरुआत हो चुकी थी और इस अवधि के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली जल उठाने की सभी युक्तियां यानी यंत्रों में से सबसे उच्च स्तरीय थी। इस पद्धति में एक पहिए के रिम के चारों ओर छोटे छोटे डिब्बे की शक्ल के बर्तनों की लड़ी जुड़ी हुई होती थी। कहते गियर की एक यांत्रिको भी इसके साथ जुड़ी होती थी और पशु शक्तियों के बल पर इस पहियों को जो है घुमाया जाता था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। दिल्ली के सल्तनतों ने नहरों की सिंचाई को विशेष रूप में प्रोत्साहित किया था। गयाउद्दीन तुगलक जो कि 1320 से लेकर 1325 ईस्वी ने इस प्रयोजन के लिए अनेक नहरों का निर्माण भी करवाया, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था। 4 ऐसी नहरें का उल्लेख हमें समसामयिक शासनों में आम तौर पर मिलता है और ये थे सतलुज के घाघर, नदवी के सिलूमर पहाड़ी के आरंभ होकर अरासनी तक, घाघर से गांव के पहुंच से जो है हिरानसी खेरा तक और यमुना से खुदाई शुरू करके फिरोजाबाद तक बढ़ाई गई। दिल्ली सल्तनत की नहरों के निर्माण की परंपराओं को मुगल शासकों ने भी जारी रखा। उदाहरण के लिए शाहजहां के राज्य के दौरान निर्मित कराई गई नहर फौज, यान और जल पूर्ति करके एक बहुत ही बड़े क्षेत्र की सिंचाई करती थी। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस समय के अंतर्गत। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी जो है आपको दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर प्राप्त होता रहेगा।